میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار کتنا ہیں کہ موڑ میں بیٹھے ہیں یا نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں ہے تلوا تیرا، اور ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ، جس کا ٹرانسلیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کس کے بارے میں؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اپنے پیارے حبیب، پیارے نبی جو آخر الزمان، پیغمبر اسلام، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے، یعنی صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آسمان، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنے بھی جہان، عالم ارواح، عالم برزخ، جتنے بھی ہیں تمام جہان کے لیے، صرف یہ دو نہیں ارشاد فرمایا میرا رب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب، میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ معزز سامعین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو بنایا ہے، میرے گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ کو میں سبق پڑھاؤں اور اس سبق پر آپ لوگ توجہ دیں، غور کریں، دھیان لگائیں کہ اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو مقصد کیا تھا؟ میرے نبی کے آنے سے قبل اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر انبیاء کرام اپنے اپنے طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ معزز سامعین کرام، میرا رب جب اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو اسی لیے اس سے قبل میں بتاؤں کہ انسانی آبادی آج ہم اور آپ جس کے نسل ہیں، انسانی وجود ہمارے اندر جو آئی ہے، رب قدیر نے مجھے پیدا کیسے کیا ہے، میری تخلیق کیسے کی ہے، میرا یہاں پہ آنا کیسے ہوا۔ رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھا اور فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا، اے میرے فرشتوں بتاؤ، میں دنیا میں اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں، یعنی اپنا خلیفہ، ایک انسان بنانا چاہتا ہوں۔ بات توجہ سے سنیے گا، آج ہمارے اور آپ کے اندر جو انسانی وجود ہے، یہ فطرت ہمارے اندر جو خرافات کی ہے، آج ہم اور آپ سب وہاں تو ہے نا پیچھے نیند آ رہی ہے آپ کو، تو اب میرے طرف توجہ دیجیے آپ لوگ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جو میں گفتگو اٹھایا ہوں تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر ہے، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو 15 منٹ میں سمیٹ دوں گا، 15 منٹ میں سمیٹ دیں، اس لیے کہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، اگر بیٹھے رہے مسلسل میں سنا دوں گا 2 گھنٹہ لگاتار۔ آپ 2 گھنٹہ سناؤ، ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اور
कहा पीजिए। तो अल्लाह की बारगाह अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछा कि मैं अपना दुनिया में एक नायब भेजना चाहता हूँ, या खलीफा। तो फरिश्तों ने कहा या रब, ऐ मेरे रब, तो दुनिया में इंसान को अपना रब अपना खलीफा क्यों बनाना चाहता है? तो रब कदीर इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, ऐ फरिश्तों जानो सुनो, मैं दुनिया में अपना खलीफा इसलिए भेजता हूँ कि ये दुनिया में जाएंगे और इंसानी आबादी फैलेगी तो मेरी इबादत करेंगे। क्या करेंगे? मेरी इबादत करेंगे। लेकिन आज के इंसान सिर्फ खुराफात में नजर आ रहे हैं, सिर्फ इधर से उधर इधर बातें करते हुए नजर आते हैं। तो फरिश्ते ने अर्ज किया था, ए रब्बे कदीर, क्या हमारी जमात तेरी इबादत करने के काफी नहीं है? हम लोग तेरी इबादत नहीं करते हैं, तेरे सजदे नहीं करते हैं, तेरी तस्बीह व तहमीद नहीं करते हैं। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, जो मैं देखता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो तुम नहीं जानते हो। तो फरिश्तों ने कहा था, ए रब्बे कदीर सुनो, ए रब्बे कदीर, जिस इंसान को दुनिया में तू बनाना चाहता है, किस इंसान को दुनिया में भेजना चाहता है, कल यही इंसान दुनिया में जाने के बाद इबादत तो कम करेगी लेकिन खुराफात ज्यादा करेगी, इबादत तो कम करेगी लेकिन चुगलखोरी ज्यादा करेगी, इबादत तेरी कम करेगी, तेरी बारगाह में सजदे रेस कम करेंगे लेकिन एक दूसरे की गीबत करते हुए नजर आएंगे, तेरे सामने नमाज तो कम, तेरी नमाज कम पढ़ेंगे लेकिन दूसरों की चुगलखोरी करते हुए नजर आएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। इतना कहने के बाद रब ने मशवरा लिया है और फरिश्तों को हुक्म दिया है कि गारा मिट्टी पानी हवा इकट्ठा कर दिया जाए और एक गारा तैयार किया जाता है। फरिश्ते जो है पानी लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, उसका गारा बनाया जाता है जिससे आज हम और मिट्टी का घर बनाया करते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ने गारा बनवाता है, बनवाने के बाद एक ढांचा बनवाता है, एक पुतला तैयार करता है। पुतला तैयार करने के बाद जब इंसानी पुतला तैयार होता है, इंसानी पुतले के शक्ल में आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल बयाना देता है, नाम रखता है आदम अलैहिस्सलाम। तो दुनिया के सबसे पहले पैगंबर इस्लाम है, दुनिया के सबसे पहले नबी है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम को पानी से पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर पानी भी मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर में जिस्म में तो मिट्टी भी मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर में हवा भी मौजूद है। इन तमाम चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया है, आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे को बनाया है। बनाने के बाद जब पूरे तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ढांचा तैयार होता है, पुतला तैयार हो जाता है, होने के बाद बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डालना चाहता है कि इसके अंदर में रूह डाल दी जाए जिससे जिस्म हरकत करने लगे, हाथ पांव हरकत करने लगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अब रूह डालता है तो रूह वापस चली आती है। अब मैं अजमत बता रहा हूँ, मेरे नबी की अजमत बयान कर रहा हूँ, नबी की नूरानियत बयान कर रहा हूँ। नबी की नूरानियत क्या चीज है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को डाला था तो रूह वापस आ जाती है। फिर अल्लाह ने दूसरी मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली है, फिर रूह वापस आ जाती है। फिर तीसरी मर्तबा रब्बे कदीर ने जब रूह को डालना चाहा है तो रूह वापस आ जाती है। तो रब ने पूछा था, ऐ रूह, तुम्हें इस पुतले के अंदर में बार बार डालता हो तू वापस क्यों चली आती है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रूह रिज़ा पेश करती है, ऐ बारे इलाहा, ऐ रब्बुल आलमीन, जिस रूह के अंदर में, जिस जिस्म में, जिस पुतले में तू मुझे डाल रहा है उसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें तो अंधेरा है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, मैं उसमें कैसे रह सकती हूँ? हज़रात मोहतरम, जब इतना रिज़ा पेश करती है रूह ने तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक हल्की सी झलक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पड़ती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नबी की नूरानियत पड़ती है, नबी का नूर पड़ता है, उसमें उजाला आ जाता है। जब रब्बे कदीर ने चौथी मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डालता है तो रूह डालने के बाद रूह समा जाती है, हाथ हरकत करने लगते हैं, पाँव हिलने लगता है। तो हज़रात मोहतरम, जब
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह पड़ती है, हाथ पांव हरकत में आते हैं, जिस्म चलने लगता है, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्तों को, ए तमाम फरिश्ते हज़रत आदम के सजदा कर लो, हज़रत आदम के सामने झुक जाओ। तो हज़रात मोहतरम, जब रब्बे कदीर का हुक्म होता है, रब्बे कदीर का हुक्म पाते हैं, तमाम फरिश्ते के फरिश्ते हज़रत आदम को सजदे में जाते हैं, हज़रत आदम को सजदा करने के लिए झुक जाते हैं। लेकिन उसी में एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसे आदम और आप से इब्लीस कहा करते हैं, जिसे हम और आप इब्लीस कहते हैं, तो फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों का बहुत बड़ा सरदार था। रिवायतों में आता है, किताबों में लिखा गया है कि ऐसा इबादत गुजार था, इतना इबादत किया था कि अगर उस वक्त मेरे जमीन पर राई का दाना फेंक दिया जाता, कोई ऐसा जगह न बचता कि जहां पे उसने अल्लाह की सजदा न किया हो। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कहा कि हज़रत आदम को सजदा कर लो, तो उस इब्लीस को उसको तकब्बुर आती है, उसे घमंड आता है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे अजीजों दोस्तों, आज जब तकब्बुर करते हो, दौलत के मान की तो तवज्जो करते हो, पैसों पे आकर के तकब्बुर होने लगता है, जिसे अंदर में घमंड आ जाता है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह इरशाद फरमाता है जिसको घमंड आता है उसकी घमंड ज्यादा देर नहीं चलती है, जिसके अंदर में तकब्बुर होता है उसका तकब्बुर बहुत देर तक नहीं चलता है, जल्द ही जल्द टूट जाया करता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा गया तो तमाम के तमाम फरिश्ते सजदा रेज हो जाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं। लेकिन इब्लीस सजदा करने से इनकार करता है, अर्ज करता है या बारी इलाहा, ए रब्बल आलमीन, तुम मुझे आग से पैदा किया है और एक मिट्टी से पैदा किया है, ये मेरी औकात नहीं है, मैं इसके सामने झुक नहीं सकता हूँ, इसलिए तू मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है, ये मेरी तौहीन नहीं होगी, मैं उसके सामने सजदा नहीं करूंगा। जब उन्होंने सजदा करने से इनकार किया था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे फरिश्तों की जमात से निकाल करके बाहर कर दिया था और कहा था तू ये फरिश्तों की जमात में नहीं रह सकता है, तुझे इब्लीस करार दिया जाता है, तुझे मलाउन करार दिया जाता है। ये कह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे फरिश्तों की जमात से बाहर कर देता है। करने के बाद उसी वक्त में फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उस शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा किया था, ए बार इलाहा, ए रब्बुल आलमीन, आप मुझे एक सजदा करने के वजह में, एक सजदा की इनकार करने की वजह से फरिश्तों की जमात से बाहर करता है, जन्नत से बाहर निकालता है। तो सुन ले, कल यही तेरे बंदे तो तेरी इबादत करेंगे तो मैं इन्हें बहका दूंगा, यही तेरे बंदे तेरे सामने सजदा झुकाएंगे तो मैं इन्हें शराब के अड्डे पे ले जाऊंगा। कल यही तेरे बंदे जब जुआ खेलेंगे तेरी इबादत करेंगे तो मैं इन्हें जुआ खिलाऊंगा, यही तेरे बंदे तेरी इबादत करेंगे तो इन्हें शराबनोशी में मुबतला करूंगा। तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ शैतान, तूने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया है, मेरे पैगंबर को सजदा करने से इनकार किया है, जब तू मेरे बंदे को बहकाएगा तो मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन मेरे हबीब के सदके में इन तमाम मेरे बंदे के गुनाहों को माफ कर दूंगा। जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आज दुआ करेगा कि मौला मुझे जाने अनजाने में आज फला सी गलती हो गई है, परवरदिगार आलम तुमने हबीब के सदके में मेरे गुनाह को बख्श दे, तो मौला ताला इरशाद फरमाता है कि मैं उसे जरूर माफ कर दूंगा, इसलिए कि गफूर रहीम है, रब्बुल आलमीन हो, मैं उसे जरूर माफ करूंगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सजदा करने से इनकार किया तो जन्नत से बाहर। आज हम और आप आलिम दीन को देखते हैं, तालिब इल्म को देखते हैं तो पेट में दर्द उभरने लगता है। कोई पैजामा कुर्ता टोपी लगा करके दरवाजे पर पहुंचे, पेट में दर्द उभरने लगता है। कहीं ऐसा न हो कि चंदा मांगने आ गया हो, कहीं ऐसा न हो कि चंदा लेने के लिए आया हो। अरे वो इंसान खुश नसीब होना चाहिए उसके लिबास को देख करके कि सुन्नत नबी के लिबास पहन करके मेरे दरवाजे पर आया है, उसे इज्जत के साथ अपने मकान पे बैठाओ, पानी पिलाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जब तो मेरे बंदे को बहकाएगा और मेरा बंदा मेरी बारगाह में तौबा करेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा रहने के लिए, कुछ साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे और पहली मर्तबा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई थी तो आपने छींका था तो अर्श आज़म पर क्या देखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सामने लिखा था मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम पूछते हैं, ए बार इलाहा, आप अपने नाम के सामने और कौन सा नाम लगा रखा है, ये कौन सा नाम है, मोहम्मद कौन है?
میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے اے پیغمبر اے نبی اے آدم یہ میرا وہ محبوب بندہ ہے میرا وہ پیغمبر اسلام ہے جو تمام نبیوں کا نبی ہے جو تمہارا بھی نبی ہے جو تمام رسولوں کا رسول ہے جو آخری پیغمبر اسلام ہے۔ تو حضرت محترم جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آئے اور آنے کے بعد کچھ عرصہ جنت میں رہے تو شیطان دیکھتا ہے اب اس کے پیٹ میں درد ابلنے لگا کہ کس طریقے سے انہیں بہکایا جائے۔ کچھ دنوں تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کہ بار الہ اب مجھے اکیلا نہیں رہ جاتا ہے میرا کوئی ساتھی بھیج دے میرا کوئی ہم سفر بھیج دے۔ تو حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا۔ کس کو ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام میری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی انسان کے اصلی ماں باپ ہیں جہاں سے میری نسل چلتی ہے جہاں سے انسانی وجود ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے آپ کا باپ کون ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تمہاری ماں کا نام کیا ہے اصل میں ماں کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت محترم میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا میں 10 منٹ کہا تھا تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکا ہے۔ میں تمام لوگوں کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مولا تعالیٰ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مولا اپنی بارگاہ عزت میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔